حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ گروپ 1 تقرریوں پر بے چینی ختم۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے امتحانات اور تقرریوں کو قرار دیا درست، سنگل بینچ کا حکم منسوخ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی عادل آباد میں بلدیاتی انتخابی مہم، پیدل دورہ، گھر گھر عوام سے کی ملاقات۔ 11 فروری کو پتنگ کے نشان پر ووٹ دینے کی اپیل۔ بلدیاتی انتخابات مریال گڑھ میں وزیر اعلیٰ کی عوام پر سے کانگریس کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ سابق BRS پر سنگین الزامات، ذات پات کے ذکر پر سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ کے بیانات پر سوالات۔ بلدیاتی مہم میں گندی زبان، نہ پالیسی نہ ترقی، KTR کا CM ریونت ریڈی پر حملہ۔ ہارورڈ سرٹیفکیٹ واپس لیا جائے۔ RS پروین کمار کا CM کے خلاف بڑا مطالبہ۔ مندروں یا تہواروں کی توہین ہوئی تو کانگریس زیادہ دن اقتدار میں نہیں رہے گی، BJP صدر کا محبوب نگر میں خطاب۔ مسلم ووٹ بینک کی خوشامد کا الزام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں گروپ 1 تقرریوں کے عمل سے متعلق جاری بے چینی بالآخر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ کی قیادت والی ڈویژن بینچ نے ایک اہم فیصلہ میں گروپ 1 امتحانات اور تقرریوں کو درست قرار دیتے ہوئے سنگل بینچ کے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے تحت نتائج کے دوبارہ جانچ یا امتحان از سر نو منعقد کرنے اور تقرریوں پر حکم التوا عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد واضح کیا گیا کہ گروپ 1 امتحان شفاف طریقے سے منعقد ہوا اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ بعض امیدواروں نے جانچ کے عمل اور بائیو میٹرک نظام پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد 563 منتخب امیدواروں کی تقرری کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملازمتوں کی بھرتی کو روکنے کی سازش کے خلاف فتح قرار دیا اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے قیام کے بعد پہلی بار تقرر پانے والے یہ گروپ 1 افسران تلنگانہ کی تعمیر نو میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 4 فروری کو عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے ایک بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کیا اور بعد ازاں شہر میں قیام کیا، جبکہ آج 5 فروری کی صبح انہوں نے وارڈ نمبر 32 اور 34 کا پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر عوام سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور 11 فروری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، مجلسی ٹاؤن صدر نذیر احمد، حیدرآباد سے آئے مجلس کے کارپوریٹرز، مقامی قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ پولیس اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس فورس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ عوام نے بیرسٹر اویسی کا شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے پرجوش استقبال کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے عادل آباد کو درپیش مسائل جیسے ریلوے انڈر برج، جدید سولیٹر ہاؤس، روزگار کے مواقع، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور CCI کے قیام اور فٹ پاتھ تاجرین کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے یقین دلایا کہ مجلس امیدواروں کی کامیابی کے بعد ان تمام امور کے حل کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرے گی۔ الیکشن ہے، یہاں پر 11 تاریخ کے دن پولنگ ہے۔ 19 امیدوار MIM پارٹی کے عادل آباد میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور کل رات میں بڑا کامیاب ہمارا پبلک میٹنگ جلسہ ہوا اور آج 3-4 وارڈوں میں پیدل دورہ بھی کیا ہوں، عوام سے ملاقات کرنا اور ان سے اپیل کرنا، گزارش کرنا ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے تاکہ عادل آباد کے مختلف بلدی وارڈز میں جو مسائل ہیں، روڈ کے، ڈرینیج کے، اسٹارم واٹر ڈرین کے، یہاں پر پھر ہاکرز کو اٹھا دیا گیا یہاں کے MLA صاحب کی تعصبیت کی وجہ سے،
और फिर कुरैश बरादरी का एक स्लॉटर हाउस, मॉडर्न स्लॉटर हाउस को बनाना है। पटरियों के उस पार जो आबादी रहती है उनके लिए गेट और अंडर ब्रिज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसका ही मैंने वादा किया कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट में और रेलवे मिनिस्टर से मैं बोलूँगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ पर कैंडिडेट उम्मीदवार कामयाब हों। CCI बंद हो चुकी है, तो जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट को भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हमारे श्रीधर बाबू, उनको चाहिए कि जितने मल्टी नेशनल्स हैं उनको लाकर यहाँ पर एक अच्छा इंसेंटिव उनको दें, टैक्स का फ़ायदा हो और उनको इनकरेज करें, ज़मीन कम से कम कीमत पे, लीज पे उनको दे दें। तो मैं समझता हूँ कि बराबर यहाँ पर आकर हम कुछ रोज़गार के लिए और मल्टी नेशनल कंपनीज को ला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं आदिलाबाद में। नहीं वैसा नहीं है, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्लॉटर हाउस का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। वही मैं आपको बोला ना, कल जलसे में बोला, आज भी बोला आपको मैं, कि हमारा कोशिश ये होगी कि हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे तो आदिलाबाद से करीब मुकाम पर एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया जाए, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर्स है उनको अच्छा फायदा होगा। दूसरा जो लोग उनका प्रोफेशन है कुरैश बरादरी का, उनको फायदा होगा, वरना दूर रखने से फिर मुश्किल होता है। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के डायड कॉलेज ग्राउंड में 4 फरवरी को मुनाक़द अज़ीमुश्शान इंतखाबी जलसे से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए अवाम से अपील की है कि 11 फरवरी को हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि यह इंतखाबात महज कौंसलर्स के इंतखाबात तक महदूद नहीं, बल्कि फ़िरक़ा परस्ती, नफ़रत और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अवामी फ़ैसला हैं और वोट ना डालना जमहूरियत से बेवफ़ाई के मुतरादिफ़ है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस ने आदिलाबाद बल्दिया के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जो अवामी मसाइल और मजलूम तबक़ात की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि फुटपाथ ताजरों और ठेला बंडी वालों को बेदखली किए जाने पर बीजेपी रुकन असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते हुए रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कुरैशी बरादरी के मसाइल, जदीद सॉलेटर हाउस, रेलवे अंडर ब्रिज, हज हाउस, शादी खानों और बुनियादी सहूलतों की कमी को साबिक़ा हुक्मरानों की नाकामी करार दिया और मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 11 बरसों में तरक्की के बजाय नफरत को फ़रोग़ दिया गया। इजलास से रुकन असम्बली याक़ूतपुरा व ज़िले इंचार्ज जाफ़र हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर मिर्ज़ा सलीम बेग और टाउन सदर नज़ीर अहमद ने भी खिताब किया, जबकि हज़ारों कारकुनान व शहरियों की शिरकत के साथ इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आपसे वादा कर रहा हूं, आप देखेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं आदिलाबाद का अंडर ब्रिज और रेलवे ब्रिज का पार्लियामेंट उठाऊंगा इंशाअल्लाह। चाहिए रेलवे ब्रिज का और उसका दूसरा कौन सा है, ओवर ब्रिज है ना ये, हाँ, ROB और अंडर ब्रिज दोनों भी इंशाअल्लाह ताला मैं इसको उठाऊंगा और पार्लियामेंट में आप सुनेंगे। और अगर मेरे से पहले बीजेपी का MP उठा लिया, समझना मैं बोला हूं, डर के उठा लिए। जिद भी अपनी, पढ़ भी अपनी, कोई जीतना ही नहीं हमारे खिलाफ। तुमने उठाए हम बोलेंगे, तुम उठाए तो हमारे बोलने के बाद उठाए डर के तुम। और दूसरी बात यह है कि हज हाउस का मामला था ना, हाँ, हज हाउस का फाउंडेशन स्टोन भी डाला गया। उस वक्त के वजीर जनाब महमूद भाई साहब डाले, मगर बेचारे महमूद भाई घर में आके बैठ गए, वो बन रहा ही नहीं अभी भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके अहम मसाइल हैं। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे गेट का मसला इंशाअल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर नुमाइंदगी करके इंशाअल्लाह ताला ये काम करवाएगी। और फिर हमारे जहां से हमारे नजीर साहब लड़ रहे हैं, कौन सा वार्ड है मैं, 34 वार्ड से कौन था चेयरमैन? नजीर थे, कौन थे चेयरमैन? कौन थे चेयरमैन? वार्ड नंबर 34 से पहले चेयरमैन था ना, था नहीं था? उन्होंने क्या करे, कुछ करे? उन्होंने कुछ भी नहीं करे। अब फिर दूल्हे भाई की तलवार बन के आके बोले मेरे को डालो।
जब तुम्हारे अब्बा थे बोल के लोग समझ के डाल दिए होंगे, अब तुम्हारे अब्बा का अब्बा यहाँ पे आके बोल रहा नजीर को कामयाब करना इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारे इस भाई का ख्याल रखो, हमारे इस बच्चे का, जिसने कौम की आवाज को महसूस किया और बहुत बड़ी कुर्बानी दी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़ा में जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से अपील की है कि कांग्रेस हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। उन्होंने यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल का संग बुनियाद रखा और ऐलान किया कि अप्रैल के बाद गरीबों को लाखों मकानात फराहम किए जाएंगे। इंदिरा हाउसिंग स्कीम को बजट में शामिल किया जाएगा और बल्दी इंतखाबात के बाद रहतो भरोसा की रकम जारी की जाएगी। वज़ीर आला ने दावा किया कि तेलंगाना मुल्क में किसान फलाही स्कीमात पर सबसे आगे है। 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। फी एकड़ 6,000 रुपये रहतो भरोसा और बारीक चावल पर 500 रुपये बोनस दिया जा रहा है। फोन टैपिंग मामले पर बीआरएस कायदीन के एतराजात को मुस्तरद करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि साबिक हुकूमत के दौर में अपोजिशन कायदीन, सहाफ़ियों और हता के निजी गुफ्तगू तक सुनी गई, जो इंतहाई शर्मनाक हरकत है, और कहा कि ऐसे अफराद को बाबाए कौम कहलाने का कोई अखलाकी हक नहीं। उन्होंने दावा किया कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को भारी कामयाबी हासिल होगी और बीजेपी व बीआरएस को अवाम मुस्तरद कर देगी। इसी दरमियान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात पर सोशल मीडिया में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, जहां सारिफीन ने सवाल उठाया है कि भारत में जात पात की सियासत क्यों खत्म नहीं हो पा रही है, और इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि खुद एक वज़ीर आला अवामी खिताब में खुलेआम जात का जिक्र कर रहे हैं। మా జాతిపితకు నోటీస్ ఇస్తారని, ఎవరికిరా నువ్వు జాతిపితవు, ఎవడు నీ జాతి? వినోదరావు నీ జాత, ఎర్రబల్లి దయాకరావు నీ జాత, కుక్కడపల్లి కృష్ణారావు గారు నీ జాత, లేకపోతే తన్నీరు హరీష్ రావు గారు నీ జాత? నీ జాతికి పిత ఉండొచ్చు, మాకు మా నల్గొండకో లేకపోతే మా పాలమూరుకు నీ జాతితో ఏం పని? నీ జాతి ఏంది? నీ నీతి ఏంది? నీలాంటోడు జాతి పితయి పిల్ల మొగుడు జోలి పెట్టుకుంటే కూడా ఫోన్ లేనే సన్నాసి నువ్వు జాతి పితవంటే ఎవడన్నా ఉంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు, బాయిలో దుంకి చచ్చిపోతారు. సిగ్గుతోని తల వంచుకోవాలి. ఇట్లాంటి ఘోరమైన క్రూరమైన నేరాలు చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకొచ్చినట్టు వానికి ముఖానికి ముసుగు తొడిగి కండ్ల కాడికి ఇట్లా పొక్కలు పెట్టి పట్టుకుతారు. ఆయన ముఖం మందికి చూపియొద్దాడు. మన పోలీసు వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు హరీష్ రావును, కేటీఆర్ని అందరినీ ముఖానికి ముసుగు తొడిగి పట్టుకొచ్చేది ఉండే, లేకపోతే ముఖానికి మసి పూసి పట్టుకొచ్చి పోలీసుల ముందర పెట్టేది ఉండే. పోలీసు వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాబట్టి ఏమనలేదు. మా జాతిపితకు నోటీస్ ఇస్తావా? మా జాతిపితకు నోటీస్ ఇస్తే తెలంగాణ సమాజానికి అంత ఇచ్చినట్టే అంటాడు. ఎవరికిరా నువ్వు జాతిపితవు? ఎవడు నీ జాతి? వినోదరావు నీ జాత, ఎర్రబల్లి దయాకరావు నీ జాత, కుక్కడపల్లి కృష్ణారావు గారు నీ జాత, లేకపోతే తన్నీరు హరీష్ రావు గారు నీ జాత? నీ జాతికి పిత ఉండొచ్చు, మాకు మా నల్గొండకో లేకపోతే మా పాలమూరుకు నీ జాతితో ఏం పని? నీ జాతి ఏంది? నీ నీతి ఏంది? बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंतखाबी बयानात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला के पास आवाम को बताने के लिए ना कोई पॉलिसी है और ना ही कोई तरक्याती मंसूबा, बल्कि इनकी तकर्रियों में सिर्फ गंदी और तौहीन आमेज जबान सुनाई देती है। केटीआर ने कहा कि तालीम चाहे दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से हासिल कर ली जाए, अगर तहजीब और शाइस्तगी ना हो तो सोच कभी दुरुस्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना की तहरीक की क़ियादत की, रियासत हासिल की और पहले वज़ीर आला बनकर एक सुनहरी तेलंगाना की बुनियाद रखी, मगर रेवंत रेड्डी इस अजीम विरासत के खिलाफ बाजारी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनकी नाअहली और तकब्बुर की अलामत है। केटी रामाराव ने वाज़ेह किया कि तारीख बनाने वालों की तौहीन अल्फाज से नहीं की जा सकती और जो शख्स गालियों की सियासत करता है वो दरअसल अपनी जहनी गुर्बत का खुद इजहार करता है, जबकि रियासत के लिए कुर्बानियाँ देने वालों के खिलाफ बोलने का इन्हें कोई अखलाकी हक हासिल नहीं। बीआरएस के कायद डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ईमेल इरसाल करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को दिया गया लीडरशिप सर्टिफिकेट फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है।
डॉक्टर प्रवीण कुमार, जो खुद हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के साबिक तालिब इल्म हैं, ने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 फौजदारी मुकदमात ज़ेर समाअत है, जो किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर आला के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं, और वो 2015 के नोट के बदले वोट मामले में रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, जिसके बाद इन्हें तकरीबन 50 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी जात पात और फिरके वाराना सियासत को हवा दे रहे हैं, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ुद को एक अखलाकी लीडर के तौर पर पेश करना हार्वर्ड जैसे इदारे के इक़्तिदार के मुनाफी है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने सवाल उठाया कि ऐसे मुतनाज़ा रिकॉर्ड के हामिल सियासतदान को 21वीं सदी की क़ियादत जैसे प्रोग्राम का सर्टिफिकेट देना किसी बात की अलामत है, और कहा कि अगर हार्वर्ड ने फौरी कार्रवाई ना की तो ये इदारे की साख पर संगीन सवाल खड़े करेगा। बीआरएस के सीनियर कायद साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि बल्दियाती इंतखाबात का बहाना बनाकर रैतु बंधु की रकम रोकना किसानों के साथ नाइंसाफी है, जबकि कोरोना जैसे संगीन हालात में भी साबिक वज़ीर आला केसीआर ने रैतु बंधु स्कीम को कभी मुअत्तल नहीं किया था। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने बेमिसाल कुर्बानियां, अमरन दीक्षा और तवील जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना रियासत हासिल की, इसीलिए वो हकीकी मानों में बाबाए तेलंगाना है, जबकि रेवंत रेड्डी का लब व लहजा गैर मुहज़्ज़ब और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला बैरून मुल्क तालीम या बड़े दावों के बावजूद अपनी सोच और ज़बान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ज़ाती हमलों का सहारा ले रहे हैं। हरीश राव ने चैलेंज किया कि अगर रेवंत रेड्डी में वाकई सलाहियत है तो वो ज़ाती इल्ज़ामात के बजाय हुक्मरानी, वादों की तकमील और कारकर्दगी में मुकाबला करें, क्योंकि इनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने वादे पूरे ना करके तेलंगाना के अवाम को नुकसान पहुंचाया है। మొన్నేందో హార్వర్డ్ పోయి వచ్చిందట, వీణ హార్వర్డ్ పోయినా అంతరిక్షం పోయినా కుక్క తోక వంకరది, అది బూతులు తప్ప ఇంకేమన్నా వస్తాయా? కేసీఆర్ జాతిపిత ఎట్లయితాడు అంటాడు. కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చునా? అసలు ఈ తెలంగాణ, ఈ స్వరాష్ట్రం ఎట్లొచ్చింది? కేసీఆర్ త్యాగాలతోని ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష పడితే మీరందరూ కూడా దీక్ష పట్టిరు కదా. తెలంగాణ కోసం మీరందరూ బయలుదేరలే రోడ్ల మీదకి. ఈ రేవంత్ రెడ్డి నన్ను ఒక్కనాడైనా జై తెలంగాణ అన్నాడా? ఈయన ముఖానికి తెలంగాణ తెచ్చిన దాంట్లో మీరు అమరులు. కేసీఆర్ ఇంతమంది కొట్లాడి మనం తెలంగాణ తెచ్చినాం. కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చునా? అసలు అది వచ్చబెట్టుకుని నువ్వు ఇలా కుర్చీలో కూర్చున్నావు. ఈయన కేసీఆర్ ముమ్మాటికి జాతిపిత, రేవంత్ రెడ్డి బూతు పిత. వీడు బూతులు తప్ప ఏమన్నా అవనికి? అదే నువ్వు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏం మాట్లాడాలి? ఇగో నేను 4000 పింఛన్ రేపటికెళ్ళి ఇస్తున్నా అని చెప్పాలి. లేకపోతే నేను మహిళలకు బాండ్ పేపర్ మీద రాసి సంతకం పెట్టి ప్రామిసరీ నోటు మీద 2500 ఇస్తా అన్నా ఇక రేపటి నుంచి ఇస్తా అని చెప్పాలి. గది చెప్పాడు. అదేం మాట్లాడితే బూతులే బూతులే బూతులు, తిట్టుడే తిట్టుడు. अरे केसीआर तेलंगाना की सदर तंजीम तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया बयानात पर शदीद तनकीद की है, जिनमें उन्होंने विलम्मा बरादरी को निशाना बनाया। कविता ने कहा कि वज़ीर आला ने आइन के तहत हलफ के बावजूद तमाम तबकात का एहतराम नहीं किया और मखसूस बरादरी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज रवैया अपनाया, जो न सिर्फ नामुनासिब बल्कि खतरनाक है। उन्होंने जोर दिया कि सियासी तनकीद की हद होती है, मगर ज़ाती सतह पर किसी बरादरी को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। कविता ने मजीद कहा कि जगतियाल के एमएलए संजय के कांग्रेस में शमूलियत के बावजूद स्पीकर की जानिब से इन्हें क्लीन चिट देना गलत है, और अगर वो वाकई अखलाकी इख्तियार के पाबंद है और एमएलए के अहदे से इस्तीफा देना चाहते हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि स्पीकर फौरी तौर पर अपने फैसले पर नजरसानी करें ताकि आईनी हुकूक पामाल ना हो और आने वाली नस्लों के लिए गलत मिसाल कायम ना हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को फिल्म इंडस्ट्री के कौमी मरकज में तब्दील करने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। गदर फिल्म अवार्ड्स के जेवरी मेंबरान के साथ मुनाक़दा इजलास में उन्होंने कहा कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में फिल्म इंडस्ट्री की तोसी के इम्कानात महदूद हो चुके हैं, जबकि हैदराबाद में मुख्तलिफ ज़बानों की फिल्मों की तैयारी और फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ से नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और टेक्नीशियंस, राइटर्स और डायरेक्टर्स को भी फ़ायदा पहुँचेगा।
बट्टी विक्रमार्का ने बताया कि साबिक हुकूमत ने फिल्म अवार्ड्स को नजरअंदाज किया था, तहम कांग्रेस हुकूमत ने अजीम इनकलाबी शायर गदर के नाम से फिल्म अवार्ड्स को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि गदर फिल्म अवार्ड के लिए 6 फरवरी से फिल्मों की नुमाइश का आगाज होगा, जबकि 19 फरवरी को अवार्ड तकरीब मुनाक़द की जाएगी। इजलास में फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिलराजू, कमिश्नर इत्तलात प्रियंका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किशोर बाबू समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नाबीन ने तेलंगाना के अपने पहले दौरे के मौके पर महबूब नगर में मुनाक़दा विजय संकल्प कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया और कहा कि अगर हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों या त्योहारों की तौहीन की गई तो कांग्रेस ज्यादा दिन इख्तिदार में नहीं रह पाएगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की सियासत कर रही है और सनातन धर्म जो भारत की रूह है पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 2 वर्षों में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। नितिन नाबीन ने कहा कि अगर सनातन सकाफत की बेहुरमती की गई तो बीजेपी कारकुन खामोश नहीं रहेंगी। उन्होंने कांग्रेस पर बदउनवानी के इल्जामात आयद करते हुए दावा किया कि तरक्याती कामों और बिलों की मंजूरी के लिए आरआर टैक्स वसूल किया जा रहा है। नितिन नाबीन ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस साबिक बीआरएस हुकूमत ही के नक्शे कदम पर चल रही है और दोनों हुकूमतों के तर्ज हुक्मरानी में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इख्तिदार में आकर आवाम से किए गए वादों को भुला चुकी है और रियासत में सकाफत शनाख्त को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसे बीजेपी किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 सालों में हमारे कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, वहां पे हमला किया गया। मुझे जो जानकारी मिली, चेगी चेरला में भीड़ के द्वारा हमला, मुथिया लम्मा मंदिर पे तोड़फोड़ और गांधीनगर मंदिर को अपवित्र करने का जो प्रयास किया गया है, मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस के आकाओं को कहूंगा, सुन लो, सनातन भारत की परंपरा है, पहचान है, भारत की आत्मा है। इसके खिलाफ अगर इसके खिलवाड़ करोगे तो भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, आपके खिलाफ सड़क पर उतरेगा और सनातन परंपराओं की लड़ाई के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार खड़े हैं। हमारे मंदिरों पे, हमारे हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर अगर आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे, हमारे त्योहारों पे पाबंदी लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत दिन आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इस बात का मैं आपको चेतावनी देकर जाना चाहता हूं। हैदराबाद में हाइड्रा कमिश्नर एबी रंगनाथ ने प्रजावाणी में मौसूला शिकायत के बाद कामिनी चेरू और तुर्का चेरू झीलों का जमीनी मुआयना किया और इनकी तरक्की व बहाली के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि झीलों में होने वाली तजावुज़ात को हटाया जाएगा, सीवरेज के बहाव को रोका जाएगा और डिसलेटिंग के साथ झीलों की खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंसूबे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, पार्क्स और वॉकिंग ट्रैक्स तामीर किए जाएंगे ताकि झीलों को महफूज बनाया जा सके और अवामी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। कमिश्नर रंगनाथ के मुताबिक झीलों की बहाली और सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार आईपीएस ने अवामी राब्ते को मजबूत बनाने के लिए मीट यूअर सीपी मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि वो हर हफ्ता दोपहर 2 बजे के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में अवाम से बराह रास्त मुलाकात करेंगे ताकि शहरी अपनी शिकायत, मसाइल और सवालात इनके सामने रख सकें। कमिश्नर के मुताबिक जुमा के दिन ये मुलाकातें पुराने शहर के कोतवाल हाउस पुरानी हवेली में होंगी, जबकि किसी भी शहरी को मुलाकात के लिए पेशगी वक्त यानी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वीसी सजनार ने यकीन दहानी करवाई कि अवाम के मसाइल पुलिस के लिए अहम हैं और हैदराबाद पुलिस शहरियों के साथ बराह रास्त राब्ते में और अवाम दोस्त खिदमात के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है।
बल्दी इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। ऐसे में आदिलाबाद के वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस के टिकट पर नौजवान लीडर मोहम्मद शोएब इंतखाबी मैदान में हैं और यहां की अवाम का भी अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कांग्रेस के जिले सदर नरेश यादव और हल्के इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर कांग्रेस के कायदीन का मोहम्मद शोएब को मुकम्मल ताउन हासिल है। हमारे नुमाइंदे खिजर अहमद याफई की देखिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के ज़रिए मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ, पहले तो कांग्रेस पार्टी के लीडरान आदिलाबाद के जो भी है मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, जो कि मुझे एक काबिल इंसान समझ के मुझे वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस पार्टी की टिकट दी और मैं यहाँ पर मैदान में उतरा हूँ। और इसके पहले से भी मैं काम करते आ रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, जबकि मेरे को कोई अहदा नहीं था। अभी अच्छा, और हमारी टीम जो है सो हमारी पूरी नौजवान टीम है, वार्ड के अंदर जहाँ कहीं भी घूम रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है और हर कोई बोल रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस में चेयरमैन बिठाना है सबकी। ये हमारे वार्ड के पब्लिक की एक ख्वाहिश है कि वार्ड में जो है सो चेयरमैन जो है सो कांग्रेस पार्टी का बिठाना है। जैसे कि आज आपने वार्ड नंबर 28 का दौरा किया, तो आज जैसे आप लोगों से मुलाकातें करे, घर घर गए, तो लोगों का क्या रिस्पांस था आपके बारे में? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था और वो लोग बोल रहे थे कि आप पहले कुछ नहीं रह के इतना कर रहे थे शोएब भाई, हम आपको जिताएंगे, हम लोग आगे बढ़ के आपको भारी से भारी मेजॉरिटी में जिताएंगे और हमारे प्रॉब्लम्स जो है आप बराबर सॉल्व करो। हम लोग आपको देखे कि आपके पास कुछ नहीं था, तो आप जो है सो इतनी मेहनत करके म्यूनसिपल कमिश्नर के पास होने दो या फिर किसी भी, या फिर मी सेवा के प्रॉब्लम्स इश्यूज होने दो, कुछ भी होने दो, पुलिस स्टेशन के इश्यूज होने दो, हर कोई जो है सो आप अच्छी बात करते हैं, अच्छा हमारा काम करते हैं, इसीलिए हम आपको वोट डाल के भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे बोल के बोले थे। सदाशिवपेट म्युनिसिपल इंतखाबात में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर हैं, जहां मजमूई तौर पर 24 वार्ड में 99 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। आज वोटरों से बराह रास्त राब्ते के तहत घर घर मुहिम के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान असेंबली हल्के के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो अपने अपने वार्ड्स में मजलिस के उम्मीदवारों को पार्टी निशान पर वोट देकर कामयाब बनाएं। इसी सिलसिले में संगारेड्डी के साबिक रुकन असेंबली और टीपीसीसी के वर्किंग सदर जगा रेड्डी ने भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की अपील की। मजमूई तौर पर सदाशिवपेट में इंतखाबी फिजा खास गर्म हो चुकी है और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी ताकत आजमाई में मसरूफ नजर आ रहे हैं। पुरानी हवेली में वाक़े मस्जिद आसिफिया में शबे बारात की बाबरकत रात एक रूहानी और यादगार अंदाज में मनाई गई। नमाज इशा के बाद मस्जिद आसिफिया से मलहायक मदरसा शहजादी सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जहां ज़ेरे तालीम बच्चों की हौसला अफजाई की गई। मदरसे में मजमूई तौर पर 200 बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें 80 लड़के और 110 लड़कियां शामिल हैं। शबे बारात के मौके पर कुरान मस्जिद मुकम्मल करने वाले 7 लड़कों और 27 लड़कियों को सोने के तमखों और असनाद से नवाजा गया। ये तकरीब मस्जिद के ज़ेरे सदारत असद पाशा साहब मुनाक़द हुई, जबकि निजामत के फ़राइज़ मोहम्मद ताहिर शर्फी ने अंजाम दिए। इस मौके पर वालिदीन और अहले महल्ला ने बच्चों की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया और मदरसा की खिदमात को सराहा।
क्या सहाबाए किराम सबके सब जन्नती हैं? जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा जन्नती है। दुआओं से नवाज़ अल्लाह नबी दुनिया और जहां में तरक्की नसीब फरमाए। बाबा हम सब के बच्चों को कुरान मजीद से शरफ और ताल्लुक़ नसीब फरमाए। ऐसा पढ़ाइए, राइट। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। ग्रुप 1 तकर्रियों पर बेचैनी खत्म। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इम्तिहानात और तकर्रियों को करार दिया दुरुस्त। सिंगल बेंच का हुक्म मनसूख। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आदिलाबाद में बल्दियाती इंतखाबी मुहिम। पैदल दौरा, घर घर अवाम से की मुलाकात। 11 फरवरी को पतंग के निशान पर वोट देने की अपील। बल्दियाती इंतखाबात मिरियालगुड़ा में वज़ीर आला की अवाम पर से कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील। साबिक़ BRS पर संगीन इल्ज़ामात। जात पात के जिक्र पर सोशल मीडिया पर वज़ीर आला के बयानात पर सवालात। बल्दियाती मुहिम में गंदी जबान, ना पॉलिसी ना तरक्की। KTR का CM रेवंत रेड्डी पर हमला। हार्वर्ड सर्टिफिकेट वापस लिया जाए। RS प्रवीण कुमार का CM के खिलाफ बड़ा मुतालबा। मंदिरों या त्योहारों की तौहीन हुई तो कांग्रेस ज्यादा दिन इक़्तिदार में नहीं रहेगी। BJP सदर का महबूब नगर में खिताब। मुस्लिम वोट बैंक की खुशामद का इल्जाम। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें VBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।